پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد عدلیہ مخالف گھناؤنی سازش شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کا اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا ان پر مشرف کیس کے فیصلے کی حمایت کا غلط الزام لگایا گیا، سچ سامنے آئے گا اور اس کا بول بالا ہوگا۔ ایک جج کا دل شیر کی طرح اور اعصاب فولاد کی طرح ہونے چاہیے۔ مشرف کو سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کے سربراہ کا کہنا ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، دیکھیں بھی تو صرف ریسلنگ دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کا ویڈیو لنک پر ایک کیس کی سماعت کے دوران وکیل سے مکالمہ۔ وکیل معظم بٹ نے جسٹس وقار سیٹھ سے کہا ان حالات میں آپ کا مطمئن رہنا بڑی بات ہے۔ جسٹس وقار بولے کیا ہوا حالات کو؟ وہ صبح آئے تو حالات ٹھیک تھے۔ آئین پاکستان ایک زندہ و جاوید دستاویز ہے، نامزد چیف جسٹس گلزار احمد کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا آئین میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات واضح ہیں، عوام کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ قانون کی حکمرانی، آئین کے تحفظ اور آزاد عدلیہ کے چیلنجز سے نبرد آزما ہوتی آئی۔ ادھر چیف جسٹس آصف سعید کھوسا آج ریٹائرڈ ہو جائیں گے، جسٹس گلزار احمد کل چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی سابق صدر پرویز مشرف کی حمایت میں باہر نکل آئے۔ لندن، ایڈنبرا، گلاسگو میں پاکستانی کمیونٹی کا سابق صدر سے اظہار یکجہتی۔ بیلجیم اور اسپین میں ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے زیر اہتمام پرویز مشرف کے حق میں مظاہرے۔ برمنگھم میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان غوث اعظم کانفرنس کے انعقاد کا اعلان، ادارے کے تحت 2 سالہ عالم کورس بھی کرایا جائے گا۔ پیر نیاز الحسن قادری، علامہ ظفر اللہ شاہ اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی کے بانی ممبر اکرم دریجہ نے برطانیہ میں اوورسیز پنجاب کمیشن کی سرگرمیوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کمیشن کے اراکین کی تعیناتی سے پی ٹی آئی میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ گلاسگو سے منتخب ہونے والے برطانیہ کے پہلے مسلمان کاؤنسلر بشیر مان 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قلعہ دیدار سنگھ سے تعلق رکھنے والے بشیر مان 50 کی دہائی میں گلاسگو آئے۔ عراق جنگ کے ایشو پر لیبر پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں معروف پاکستانی اسپن بالر سعید اجمل کے اعزاز میں تقریب، اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ بارسلونا میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ ایمسٹرڈیم کے نواحی علاقے ہوفڈورپ میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب نے شہریوں کے دل موہ لیے۔ ایشیائی کمیونٹی کی بھرپور شرکت، شرکا پنجابی گیتوں پر بھنگڑے ڈالتے رہے۔ بریگزٹ کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور، برطانوی پارلیمنٹ میں بورس جانسن کا بریگزٹ بل منظور۔ بریگزٹ بل کے حق میں 358 اور مخالفت میں 234 ووٹ ڈالے گئے۔ برطانیہ 31 جنوری 2020 کو یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ اور سائنس اور حسن کا حسین امتزاج، سائنسدان کے سر پر سجا مس امریکہ کا تاج۔ سائنسدان کیمبلی شرائر میں امریکہ 2020 منتخب، مقابلے میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والی حسیناؤں نے بھی شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ناظرین، 337 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہنے والے مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسا آج ریٹائرڈ ہو گئے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان کئی اہم اور تاریخی فیصلے کیے۔
मुल्क की तारीख में पहली बार दहशतगर्दी की जामे तारीफ का सेहरा भी आसिफ सईद खोसा के सर है। अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आने के बाद अदलिया मुखालिफ घिनौनी साजिश शुरू हो गई। मुशर्रफ केस के फैसले की हिमायत का गलत इल्जाम लगाया गया, सच सामने आएगा और इसका बोल बाला होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि एक जज का दिल शेर की तरह और आसाब फौलाद की तरह होने चाहिए। खुसूसी अदालत के फैसले पर अदलिया के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू हो गई। ये कहना है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का। अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात अहम नहीं कि फैसलों पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, हमेशा वो किया जिसे दुरुस्त समझा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी केस पर असरअंदाज होने की बात की जो बेबुनियाद और तस्दीक आमेज है। सच हमेशा जिंदा रहता है, सच का ही बोलबाला होगा। जज का दिल शेर की तरह और आसाब फौलाद की तरह होने चाहिए। बतौर जज हमेशा हल्फ की पासदारी की और फैसले बेखौफ खतर दिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस 337 दिन जिम्मेदारी निभाई। तातीलात निकाल दी जाएं तो 235 दिन काम के लिए मिले। इस अरसे के दौरान अदालती शोबे में इस्लाहात के लिए अहम इकदाम किए। सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जब पैदा हुआ तो मुंह में एक दांत था। इस पर खानदान में एक बात मशहूर हो गई कि ये बच्चा बहुत खुशकिस्मत होगा। चीफ जस्टिस ने तकरीर का आगाज सूरा अल नहल से किया, जबकि इख्तिताम पर यह शेर पढ़ा जिसके बोल हैं, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज रात 12 बजे अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुनाने वाले खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ कहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते, अगर कभी देखें भी तो सिर्फ रेसलिंग देखते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ का वकील मुअज्जम भट्ट से दिलचस्प मुकालमा हुआ। वकील ने कहा, मौजूदा हालात में आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है। इस पर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हालात को सुबह तक तो सब ठीक था। पेशावर हाई कोर्ट में मर्दान और कोहाट के केसेस के वीडियो लिंक समाअत के दौरान वकील मुअज्जम भट्ट का चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ से मुकालमा। बोले, मौजूदा हालात में आपका मुतमईन रहना बड़ी बात है। उस पर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हालात को सुबह आया था तो ठीक थे। दौरान समाअत वकील मुअज्जम भट्ट ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ से पूछा, क्या आपने आज टीवी नहीं देखा? चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने जवाब दिया, मैं टीवी नहीं देखता, अगर कभी देखूं भी तो सिर्फ रेसलिंग देखता हूं। अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया? अदालत ने ऑब्जर्व किया, आपने तो कुछ नहीं करना, आपने तो कुछ नहीं करना। तो मैंने तो कल से आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और अदालत में जो मेरी बात थी, कतई नज़र आपके फैसले की जूरिस्प्रूडेंशिया के, आप इतने आराम से बैठे हुए हैं, मुल्क में इतना कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा मैं टीवी नहीं देखता, यानी सुनता नहीं हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूं। वकील मुअज्जम भट्ट ने बाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के चेहरे के तासुरात देखना चाहता था। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के बारे में फैसला उजलत में किया, हुकूमत ने जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस के लिए हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में हुकूमत जस्टिस वकार अहमद सेठ पर गैर इंसानी फैसला देने का इल्जाम आयद करेगी। ज़राए का यह भी दावा है कि हुकूमती रेफरेंस में लाश की हुर्मत से मुतल्लिक शरई अहकामात का हवाला भी दिया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी, और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। मैं ये समझता हूँ उसको कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया सिर्फ एक 4 सतरी पैराग्राफ। इसको ये भी देखने की जरूरत है कि ये 4 या 6 सतरी पैराग्राफ कहाँ से आया और किस तरह से ये ड्रॉप हुआ इस जजमेंट। इस फैसले के जो आखिरी मराहिल है उसके पीछे तमाम महरकात को देखने की जरूरत है, और हम उसको देख रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत के तफसीली हुक्मनामे के पैराग्राफ 66 पर जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। विफाकी वजीर कानून फरूग नसीम और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने मुशावरत के बाद रेफरेंस दायर करने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली।
ज़राए के मुताबिक हुकूमती रेफरेंस में जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की ज़हनी हालत पर सवालात उठाए जाएंगे। हुकूमत इस रेफरेंस में जस्टिस वक़ार अहमद सेठ पर गैर इंसानी फैसला देने का इल्ज़ाम आयद करेगी। ज़राए का यह भी दावा है कि हुकूमती रेफरेंस में लाश की हुर्मत से मुतल्लिक शरई अहकामात का हवाला भी दिया जाएगा। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत और वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफिंग देने के बाद मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भेजा जाएगा। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले को साजिश करार दे दिया। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा, इदारों को कमजोर करने में नाकामी होगी। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सद्दीकी कहते हैं, अदालती फैसले में इस्तेमाल करदा जुबान अच्छी नहीं थी। फैसले पर तासुब और जानिबदारी नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो बोले, मामले के हल के लिए अदालती फार्म और कानून मौजूद है। पैरा नंबर 66 फैसले का ऑपरेशनल पैरा नहीं, ये पैरा जज की राय है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले ने हलचल मचा दी। सियासी रहनुमाओं ने फैसले को साजिश करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, फैसले से हफ्ता कबल चीफ जस्टिस ने कमांडो स्टाइल में हाथ उठाकर कहा, साबिक आर्मी चीफ का फैसला आने वाला है। क्रमोइल की मिसाल भी जज साहब ने ही दी। लगता नहीं वो इतने बेखबर और लाताल्लुक थे। फिरदौस आशिकवान ने कहा, इदारों में हम आहंगी और बाहमी एतमाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। बैरूनी अनासर और उनके अंदरूनी आलाकार मुल्क को अदम इस्तेहकाम और इदारों को कमजोर करने के मजमूम अजाइन में नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मामले के हल के लिए अदालती फोरम और कानून मौजूद है। पैरा नंबर 66 फैसले का ऑपरेशनल पैरा नहीं, ये पैरा जज की राय है। जो पैरा 66 है उसकी हिमायत करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पैरा 66 कोई ऑपरेशनल पैरा नहीं है और ना ही वो जजमेंट का हिस्सा है। एक जज का राय है जिससे किसी और जज ने जिक्र नहीं किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अदालती फैसले में इस्तेमाल करदा जुबान अच्छी नहीं थी। परवेज मुशर्रफ केस में सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाया गया। ऐसे फैसलों की तहकीकात होनी चाहिए। फैसले में तासुब और जानिबदारी नजर आ रही है। इस फैसले के बाद और में इस्तेमाल होने वाली जबान के बाद हम इदारों के दरमियान कशीदगी, गलतफहमी, तलखी के इम्कान को इदारों के दरमियान तसादुम के करीब तस्वूर करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ फैसले में जो अल्फाज लिखे गए हैं उससे सबको दुख हुआ। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने कहा, फैसले से जग हसाई हुई। अगर किसी जज के खिलाफ ऐसा फैसला आया तो कौन अमल दरामद करेगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा, पैराग्राफ 66 का दिफा नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ मुतल्लिका अदालती फोरम से रुजू किया जा सकता है। सिराजुल हक ने ट्वीट किया, कौम पाक फौज से मोहब्बत करती है, जमहूरियत वेंटिलेटर पर है, बड़े ओहदों पर विराजमान लोग अपने मसाइल में उलझ गए, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर बरतानवी पार्लियामेंट ने यूरोप से अलग होने के लिए ब्रेक्जिट बिल मंजूर कर ही लिया। बिल के हक में 358 जबकि मुखालिफत में 234 वोट डाले गए। अब बरतानिया 31 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट का अगला इजलास 7 जनवरी को शुरू होगा, जिसमें बिल पर मजीद बहस की जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट बिल में मजीद तरामीम भी कर सकते हैं, जिस पर हतमी वोटिंग 9 जनवरी को होगी। बिल को मंजूरी के लिए दारुल अमरा में भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। बरतानिया 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का बिल मंजूर होने के बाद बरतानिया का अगला इकदाम क्या होगा, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लंदन में मौजूद 92 न्यूज़ यूके के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कि बिल मंजूर हो गया, बरतानिया आगे क्या करने जा रहा है? जी बिल्कुल, बरतानिया की जो नई नवेली पार्लियामेंट है उसने आज बहुत बड़ा फैसला किया है कि उन्होंने आज 358 वोट इस हक में डाले गए हैं कि 31 जनवरी को जो है वो बरतानिया यूरोप से अलग हो जाएगा। इसकी मुखालफत के अंदर 234 वोट डाले गए। ज़ाहिर है बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जो है बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसके पहले ही इजलास में इतना बड़ा फैसला किया गया है। और ये बताऊं कि इसके बाद अब जुमेरात वाले दिन जो मलका बरतानिया की स्पीच है उसके बाद जो बोरिस जॉनसन का बिल है उसके ऊपर बाकायदा बहस होगी
और 3 से 4 रोज़ के अंदर उसके बहस के बाद जो है वो उस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बोरिस जॉनसन कामयाब पहले मरहले में हो चुके हैं और दूसरे मरहले के अंदर जब ये इस बिल को पेश किया जाएगा तो ये माहिरीन ये कह रहे हैं, तजिया नगार ये कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन जो है वो इसमें भी कामयाब होगा और 31 जनवरी को बाकायदा तौर पर बरतानिया यूरोप से जो है वो निकल जाएगा। ठीक। हारूनिया मस्जिद बर्मिंघम में मुकाबला हुस्न क़िराअत के नाम से एक रूहानी तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मजीद अहवाल खावर राजा की इस रिपोर्ट में। नौजवान नस्ल किसी भी कौम या माशरे का असासा होते हैं। बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीमात से वाबस्ता रखना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। इसी मुनासबत से हारूनिया मस्जिद बर्मिंघम में हुस्न क़िराअत के नाम से एक रूहानी और वजदानी महफल सजाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मिनहाजुल कुरान बर्मिंघम के डायरेक्टर जनरल इलामा मोहम्मद इशफाक आलम कादरी थे, जबकि मुकाबला हुस्न क़िराअत में जजिस के फ़राइज़ उज़्बेकिस्तान से कारी महमूद हसन, पाकिस्तान से कारी अफजल अंजम और कारी मोहम्मद शबीर अल हसन ने सर अंजाम दिए। الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। मुकाबला हुस्न क़िराअत में कुल 18 बच्चों ने हिस्सा लिया। जजी साहिबान ने तमाम बच्चों की तिलावत समाअत फरमाकर मुतफिका तौर पर पहली 3 पोजीशंस पर आने वाले बच्चों के नामों का ऐलान किया, जिनको मेडल्स और शील्ड से भी नवाजा गया। कुरान पाक के साथ मोहब्बत ये हमारे ईमान का तकाजा है और आज के इस दौर की ये अहम ज़रूरत भी है कि कुरान पाक के साथ मोहब्बत शफ़क़त रखी जाए और आज के बच्चों को ये सिखाया जाए, क्योंकि आज हमारी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे हम खुद कुरान पाक की तालीमात से आशना हों। ये हमारे लिए मशअल राह है। आज हमने बर्मिंघम के एरिया में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हुस्न क़िराअत का मुकाबले का इनकाद किया, जिसमें बर्मिंघम की काफ़ी मसाजिद के तलबा ने हिस्सा लिया। तो मैं अपनी तरफ से और मेरे साथी जो मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से मशहूर के जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका मकसद नौजवान नस्ल और ख़ासकर हमारे बच्चों ने आज जिस अंदाज से परफॉर्मेंस किया, मैं समझता हूँ कि हमारा ख़ासकर कुरान के शोबे में बड़ा फ्यूचर मुस्तक़बिल अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट है, रोशन है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में हम बरतानिया से दुनिया को बेहतरीन कारी देंगे और इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर को लाए लगी। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रस्ट के ओहदेदारान का कहना था कि 16 साल के बच्चों और बच्चियों के लिए 2 साल के आलिम कोर्स का इजरा किया जा रहा है, जिसमें कुरान की तजवीद व तालीम के लिए अरब शयूख की खिदमात हासिल। बाहू ट्रस्ट आलमी सतह पर सरगर्म एक ऐसी इल्मी, फिक्री और रूहानी तहरीक है जिसका बुनियादी मकसद कुरान और हदीस की लाफानी तालीमात की रोशनी में दीन के फिक्री और अमली पैगाम को दुनिया भर में आम करना है। गुज़श्ता रोज हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के बानी रहनुमाओं पीर सुल्तान नियाजुल हसन कादरी, इलामा ज़फरुल्लाह शाह और दीगर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इस वक्त दुनिया भर में ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 20 अदारे कायम हैं, जिनमें सैकड़ों तुलबा और तालबात दीन की तालीम के नूर से बहरावर हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि 21 दिसंबर शाम 4 बजे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के बरतानिया मरकज में अजीम शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से उलमा व मशाइख की मौजूदगी में 14 हुफाज और 11 उलमा कराम को सनद व दस्तार फजीलत दी जाएगी। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 14 हुफ़ाज़ किराम और 11 उलमाए किराम जिन्होंने मुफ्ती कोर्स कंप्लीट किया, उनको दस्तार फजीलत पहनाई जाएगी। ब्रीफिंग के दौरान मजीद बताया गया कि फारुल तहसील होने वाले उलमा में 3 आलमात भी शामिल हैं जो खवातीन में दीन के फ़रोग के लिए काम करेंगी। इस दौरान अदारे की मैनेजमेंट और मौलम हजरात भी मौजूद थे, जिन्होंने बरतानिया और यूरोप में 2 साल आलम कोर्स और मजहबी तालीम को शुरू करने को खूब सराहा। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ओवरसीज पाकिस्तानियों में तकसीम पैदा हो गई है। पीटीआई बरतानिया के बानी मेंबर अकरम दरेजा ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में उनका कहना है कि ओवरसीज पंजाब कमीशन को बरतानिया में फौरी तौर पर गैर फ़ाल किया जाए।
اکرم دریجہ خط میں لکھتے ہیں کہ کمیشن نے مختلف شہروں میں نمائندے تعینات کیے جس سے کمیونٹی میں تقسیم کا خدشہ ہے، اور پی سی کے ممبر سازی سے پی ٹی آئی برطانیہ میں بھی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ پنجاب کے بعد دیگر صوبے بھی اپنا اوورسیز کمیشن تعینات کریں گے۔ ہر صوبے کا اوورسیز کمیشن تشکیل دیا گیا تو اوورسیز پاکستانیوں میں تقسیم مزید گہری ہو جائے گی۔ اسکاٹ لینڈ کے پہلے مسلمان کونسلر بشیر مان 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں برطانیہ کا پہلا مسلمان منتخب نمائندہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بشیر مان 1950 میں بطور طالب علم اسکاٹ لینڈ آئے اور تارکین وطن کی آواز بن گئے۔ 1970 میں گلاسگو سٹی کونسل کے پہلے مسلمان کونسلر منتخب ہوئے۔ انہوں نے گلاسگو سٹی مجسٹریٹ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائیں۔ وہ لیبر پارٹی کے طویل عرصہ رکن رہے، تاہم 2004 میں عراق جنگ کے دوران پارٹی سے الگ ہو گئے۔ بشیر مان کا تعلق گجرانوالہ کے علاقے قلعہ دیدار سنگھ سے تھا۔ اسکاٹش فرسٹ منسٹر نیکولا اسٹریجن نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے بشیر مان اسکاٹش مسلم کمیونٹی کے لیے رول ماڈل تھے۔ برطانیہ میں پرتشدد واقعات میں کمی نہ ہو سکی۔ لندن میں پھیلے خوف کے سائے، ایک ہی رات میں چاقو زنی کی مختلف وارداتوں میں 2 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات عدیل ڈینیل کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لندن میں چاقو زنی کے مختلف واردات میں 2 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ والتھمسٹروف کے علاقے میں ایک 20 سالہ نوجوان مردہ حالت میں پایا گیا جس کو چاقو کے وار سے قتل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسکیچ وڈ پارک میں 30 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی جس کے جسم پر چاقو کے گہرے زخم تھے۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق ایک 20 سالہ نوجوان زخمی حالت میں پایا گیا جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نوجوان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوران گشت پولیس کو سڑک کنارے کھڑی گاڑی میں 30 سالہ شخص شدید زخمی حالت میں ملا جسے موقع پر طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف ریاض سٹی کی جانب سے ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا جس میں ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان مشکل وقت میں بھی پاکستان کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات عمیر علی احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف سٹی ریاض کی جانب سے ورکرز کنونشن سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کرپشن سے پاکستان بنانے کی جدوجہد پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہے۔ ریاض سٹی کے سابق صدر بخت شیر خان اور دیگر رہنماؤں کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان عوامی خدمت کے جذبے سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب سے عمران خان نے اقتدار سنبھالا ہے سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں اضافہ ہوا ہے اور آگے بھی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب میں بہت آگے جا رہے ہیں اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا 14 دور ہے سعودی عربیہ اور سعودی عرب کے ساتھ جو پہلے سے تعلقات ہے ابھی وہ بہت زیادہ ہے اور اسی حساب سے جو پروگرام ہر جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی آگے جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف تمام کمیونٹی میں اور تمام پارٹیوں میں انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ ہوں گے۔ نہایت مشکور ہوں عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے یہاں پر ایمبیسی کا ایک بہترین سٹاف ہمیں دیا ہے جس میں ہمیں ایک بہترین سفیر بھی ملا ہے اور اس سفیر کی مدد سے ہم یہاں پہ اوورسیز کے لیے الحمدللہ ابھی جو نئی ٹیم ہماری بنی ہے پی ٹی آئی کی جو 2019 کی جو نئی سسٹم ہے ہم جو دوبارہ MC بن رہے ہیں اس میں الحمدللہ ایک بہترین ٹیم سامنے آئی ہے۔ اس تحریک انصاف میں عزت ہے، اس تحریک انصاف میں آ جاؤ۔ پاکستان میں جو ایک پارٹی ہے واحد وہ عمران خان کا ہے، تحریک انصاف ہے اور کوئی پارٹی پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے، ہر ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے بقا کے لیے کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف ہے۔ تقریب سے پی ٹی آئی سعودی عرب کے صدر عقیل ارائیں، نواب علی، شبریز اختر، طلعت محمود، وسیم خان اور عبداللہ ملک نے بھی خطاب کیا۔ عمیر علی 92 نیوز ریاض سعودی عرب۔ سیکریٹری ویمن ونگ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب ثنا شعیب کی کونسلر جنرل جدہ خالد مجید سے ملاقات ہوئی جس میں کمیونٹی مسائل اور خواتین کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے سیکریٹری خواتین ونگ ثنا شعیب کی گزشتہ روز کونسلر جنرل خالد مجید سے ان کے آفس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کونسلر جنرل خالد مجید نے پاکستانی کمیونٹی خاص طور پر خواتین کے مسائل کو فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ کونسلیٹ کی تمام ٹیم کمیونٹی کی بہتری اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، انہیں گروپ بندیوں سے نکال کر کمیونٹی کے مسائل کو حل کرانے اور پاکستان کی بیرون ملک میں وقار بلند کرنا چاہیے۔
सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में 5वां बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला सज गया, जिसमें पाकिस्तानी किताबों का स्टॉल दुनिया भर से आए शायकीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। जद्दा से अदील रियाज खोखर की रिपोर्ट देखिए। कुतुब मेले में पाकिस्तानी किताबों का स्टॉल भी सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा, जहां लोगों की बड़ी तादाद अपनी मनपसंद किताबें ढूंढती नजर आई। मेले में 50 से ज्यादा मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियां भी पेश की जा रही हैं। अब तक यहाँ आने वाले अफराद की तादाद 1,24,000 से तजावुज कर चुकी है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी ने अमेरिका में क्रिसमस के हवाले से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से सैकड़ों पाकिस्तानी निजात मसीही शरीक हुए। इस तकरीब में हवाई वतन पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मजीद अहवाल खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी दुनिया के जिस मुल्क में भी हों, इनका दिल अपने आबाई वतन के लिए धड़कता है। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही भी मुहब्बे वतन और मुल्क का सरमाया हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हजारों पाकिस्तानी नियाद मसीही अमरीकी शहरी मौजूद हैं। इन मसीहियों के लिए एक शानदार क्रिसमस नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें पेंसिल्वानिया समेत वाशिंगटन DC, मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दीगर रियासतों से भी सैकड़ों अफराद शरीक हुए। उन्होंने मजहबी गीत गाए और क्रिसमस के हवाले से चैनल 92 न्यूज की वसातत से अपने खसूसी पैगामात भी रिकॉर्ड करवाए। Today we are here to celebrate Christmas night organized by Saroj Gospel Studio and Sunny Gilmasee. Also we are going to hear so many gospel singers tonight, and we are also going to release our new music video, which is Christmas video. You're watching us on 92 News. We had a great Christmas event today. We had a lot of fun, and we want to thank you 92 News for your love and support. Happy Christmas and Happy New Year. I'm here at Christmas night in Philadelphia, Pennsylvania, an event arranged by Saroj Gospel Studios and Sunny Gilmasee. It has been such a great night, and I want to wish you all Merry Christmas and Happy New Year. जितने भी लोग 92 न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ मसीह के जन्मदिन की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इस वक्त इनका सीजन 3 है यहाँ पर फिलाडेल्फिया USA में, और बहुत ही कामयाब और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, सबने बहुत इंजॉय किया, सबने मिलकर क्रिसमस के इवेंट को बड़ी खुशी से मनाया। I just want to wish all the viewers of News 92 a very Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. मेरी तरफ से 92 न्यूज़ के तमाम तर व्यूअर्स को a very Merry Christmas and a very Happy New Year. God bless you all. सनी गिल मसीह और सरोज स्टूडियोज का ये सीजन 3 प्रोग्राम था, जो कि अमेरिका में बहुत ही कामयाब शो रहा। तकरीब में शरीक एनी सनी गिल, सोबिया एरिक, मारिया गुलरेज आमिर और दीगर ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। अमेरिका का कहना था कि वो पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआगो हैं। दुनिया भर की मसीही बरादरी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। अमेरिका में इस मौके पर चिरागां किया जाता है और गलियों, मोहल्लों और घरों को मुनफरिद बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज, वाशिंगटन। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। एम्स्टरडैम के नवाही इलाके हॉफडॉप में एक रंगारंग कसीरुल सकाफती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हॉलैंड में बसने वाले मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब के मज़ीद अहवाल बारे बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान। के इलाके हूफडॉर्प में सजने वाली खूबसूरत महफिल में बच्चों समेत हर उम्र की खवातीन और हजरात की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका मौसीकी के साथ साथ देसी खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। बरतानिया से खास तौर पर मदऊ किए जाने वाली पंजाबी भंगड़ा ग्रुप की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब सराहा। टू न्यूज से बातचीत करते हुए तकरीब के शुरका का कहना था कि नीदरलैंड में बसने वाले देसी लोगों के लिए इस किस्म की तकारीब का इनकाद तसलसल से किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को तफरीह के साथ साथ आपस में मिल बैठने का मौका भी मिल सके। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा था, और ये इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। These events happening in Holland is very important for the youth and for our upcoming children that are coming, and it's very important that we have these gatherings. पाकिस्तान के नाम से कुछ ऐसा प्रोग्राम रहे जहाँ सब पाकिस्तानी आए और इससे ज़्यादा एंजॉय करें। That's what I hope, क्योंकि मेन रीज़न हमारे जो प्रोग्राम का ये है कि लोगों को इकट्ठा करना ताकि एक दूसरे से बातचीत हो एंड एंजॉय। फर्स्ट टाइम सानू इत्थे सद्या बुलाया गया परफॉर्मेंस करने ਲਈ बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ। Audience was very welcoming. This event today, it brings everyone together, different cultures, different ethnic backgrounds, different nationalities. It gives everyone a chance to come together and get to know each other. इस तरह की कसीरुल सकाफती तकारीब मुख्तलिफ रंग और नस्ल और मज़ाहिब के लोगों के दरमियान फासले मिटाने और अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।